ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਚਰਨ ਤਾਂ ਪਰ ਸਖਿਆਤ ਚਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਵਲ ਰੈ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਰ ਸਖਿਆਤ ਹੱਥ ਲਗੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪੈ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰ ਸਖਿਆਤ ਜੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਭਣੀਜੈ ਨੈਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਖਿਆਤ ਨੈਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਖੀਜੈ ਸਰਵਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਖਿਆਤ ਸਰਵਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁਣੀਜੈ ਸਖਿਆਤ ਸੋਹੀਓ ਜਿਤ ਹੀਐ ਬਸੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਜਗਤ ਪਿਤ ਸਖਿਆਤ ਸੋ ਸਿਰ ਜਾਲਪ ਭਣੈ ਜੋ ਸਿਰ ਨਿਵੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨ ਸਕੂੰ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਰਾ ਜਹੂਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਦਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੱਥ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਈ ਸੰਨ 1479 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇਜਪਾਨ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ
ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਭਾਵ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਕਰੀਬਨ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 21ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ 40 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ 16 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਹੇੜ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੁਕੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੁਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਲੇਟੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਮਿੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਪੁਰਖ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਨਾਮ ਦੇਵਤਾ ਜਗਤ ਕਹਾਵੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਧੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹਨ, ਕੁਕਿਰਤ ਕਰਮ ਜੇ ਜਗ ਮੇਂ ਕਰਹੀ, ਨਾਮ ਅਸੁਰ ਤਿਨ ਕੋ ਸਭ ਤਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੁਰ, ਰਾਖਸ਼, ਦੈਂਤ, ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਲੇਟੇ, ਮਿੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜਾ ਚਰਨ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੰਡਵਤ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੱਤਰ ਇਤਨਾ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿੱਤਰ ਭਗਤ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਦਮ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਸਬਜ਼ ਬੇਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, 60-61 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਿੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਗੂਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ,
मित्र अमरदास तेरा गुरु कौन है? कहते उस वक्त अमरदास जी ने नीवी पा ली। कहते जो नीवी पाई उसने फिर पूछा कि मित्र बोलते क्यों नहीं, मैं पूछ रहा थोड़ा गुरु कौन है? कहते उस वक्त अमरदास जी ने नीवी पाई हुई तो क्या कहते मित्र दुर्गा प्रसाद मैं अजे तक कहते गुरु धारण नहीं किया। कहते उस वक्त गुरु धारण ना किते कारण करके उस दुर्गा प्रसाद ने ये बचन आखे सन, कहता अमरदास जिहड़ी इतना कालना कालदा है, इतना कहते भगती करदा है, इतना नाम जपदा है, कहते ये पता अजे तक प्राप्ति क्यों नहीं हुई, चौर क्यों नहीं झूलिया? क्योंकि अजे तक तू गुरु धारण नहीं किया। तो मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह के बचन उत्थे दुर्गा प्रसाद ने अपनी रसना द्वारा कहे सन अमरदास जी के बिन गुर काल न पवी ई थाए, बिन गुर मनुआ अत डुलाए, बिन गुर तृप्त नहीं बिख खाए, बिन गुर बिसियर रसे मडवाट, नानक गुर बिन काटे कट। तो उसने ये लफ्ज़ आखे सन, कहते वो मित्र उतों छड़ के चला गया अमरदास जी को, तो कहा सी ये लफ्ज़ आखे सन कि निगूरे का साथ हुआ मेरा जन्म भ्रष्ट हुआ। कहते निगूरे का साथ हुआ मेरा जन्म भ्रष्ट हुआ। उस दुर्गा प्रसाद का क्या होया ये बचन मेरे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह के हिरदे नूं विन के रख गया। वापस बासर के आ गए, पर हुण तड़प ये है कि मैं गुरु धारण करना है। मैं बेनती करा इहो जे बचन तुसीं भी नित सुनते हो। आपां नित सत्संग विच जाके नगूरे की की दुर्दशा हुंदी है, बचन सुनते हाँ पर साडा हिरदा नहीं विन्या जाता। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह का हिरदा विन्या गया। मैं आप जी बेनती करा सत्संगी जनों, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह चार भरा सन। सब तो वड्डे गुरु अमरदास जी, दूसरे सन ईश्वरदास जी। ईश्वरदास जी के बेटे हैं भाई गुरदास जी, जिन्हां दियां आपां वारां गुरु घर दे विच पढ़दे हाँ, कीर्तन दे राहीं, उन्हां दियां वारां दे राहीं, उन्हां दे कवितां दे राहीं सत्संगी जनों कथा हुंदी है। तो वो जिहड़े ईश्वरदास जी सन उन्हां दे बेटे सन। ताही कहा जाता कि पंजवें पातशाह के मामा जी लगते सन भाई गुरदास जी। अते जिहड़े तीसरे सन वो सन खेम राय जी, ते चौथे जिहड़े सन वो सन माणक चंद जी। माणक चंद जी के बेटे जस्सू जी के नाल गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह की बेटी अमरो की शादी हुई हुई सी। अगे भी वो रोज़ बाणी पढ़ती सी, पर अगे अंदर जख्म नहीं सी होया गुरु अमरदास सच्चे पातशाह का। मैं बेनती करा एक इंसान वैसे सत्संग विच आंदा है वो उन्ना कुछ प्राप्त नहीं करके जाता, पर अंदर की बेहबलता बन जाए, अंदर तड़प बन जाए, अंदर चाहत बन जाए, किते बबीहे वर्गी पुकार बन जाए, तो इसे सत्संग चो रब की प्राप्ति भी हो जाती है। पर उतनी देर नहीं होएगी जितनी देर तक अंदर तड़प नहीं है, जितनी देर अंदर प्यास नहीं है। तो जदों प्यास पैदा हो जाती है तां ही पानी पीण का भी आनंद आता है। फिर इंसान अपने आप पानी फिर कोशिश नहीं करनी पैंदी सत्संगी जनों, कि उसके मूँह के विच गिलास नहीं लगाना पैंदा, फिर इंसान अपने आप कोशिश करके पानी पी लैंदा है। हुण अंदर बेहबलता सी, जख्म सी। बीबी अमरो जी तो रोज़ बाणी पढ़ते सन, पर कहते अज जदों अमृत वेला होया ना तो बीबी अमरो जी कहते बाणी पढ़ रहे सन। कहते जदों कहते उन्हां दे कन्नां च पई, अमरदास जी दे कन्नां दे विच पई, भरा दा घर सी, विचकार दीवार सी, बाणी की आवाज़ अमृत वेले बड़ी शांति हुंदी सी। बीबी अमरो जी हाथ पांव कर काम सब चीत नरंजन नाल सुबह उठते सत्संगी जनों सिमरन करते, जो नेम सी वो अपना नेम करते, उस तो बाद मदानी पाते, झाड़ू फेरते, तो रसना तो वो बाणी पढ़ते। पर कहते अज जो बेहबलता पैदा हुई, कहते अमरदास जी के कन्नां दे विचों बाणी पई, कहते अमरदास जी अपने आसन तो उठे तो कंध नाल जाके खड़े हो गए। कहते जो कंध दे नाल खड़े होए, बाणी बीबी रोज़ पढ़ती सी। अज बाणी पढ़द्या पढ़द्या बीबी अमरो ने मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह का मारू राग दे विच जिहड़ा शब्द है, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पए, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तो गुण नाही अंत हरे, चित चेतस की नहीं बावरे आ, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। मैं बेनती करा ये जड़ा शब्द आ रहाव की पंक्ति है, चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया।
ये उन्होंने अंदर घाव कर गया। सत्संगी जनों, चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती, रस रस जोग चुगै नित फासे, छूटस मूड़े कवन गुणी, काया आरण मन विच लोहा, पंच अगंतित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई, पिया मनूर फिर कंचन होवे, जे गुर मिले तनेहा, एक नाम अमृत ओ देवे, तो नानक त्रिष्टस देहा। ये जिहड़े शब्द दियां कुछ पंक्तियां गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे हिरदे नूं विन के रख गईयां। सत्संगी जनों, इहदे विच मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने एक बड़ा सोहना इस शब्द च अलंकार दिता है। उन्होंने अलंकार दिता सत्संगी जनों, पता किहदा, जिहड़ा इंसान भट्ठी तपांदा है लोहार दा, कहते लोहार की करता, कहते भट्ठी तपांदा। मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते ए इंसान, मैं अगे भी बेनती करया करदा, मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने संसार की जिहड़ी भी प्रक्रिया दृश्यमान की बाहर दी की, उन्होंने अपने अंदर घटा लिया। उन्होंने उपदेश दे दिता सिख नूं कि यह बाहर की प्रक्रिया जिहड़ी तैनूं पदार्थां की प्राप्ति करांदी है, तैनूं बाहर दे साधन जुटांदी है, इसे प्रक्रिया नूं तूं अंदर लै जा तो तैनूं रब की प्राप्ति हो जाएगी। जदों ये बचन आए ना कि सत्संगी ना, काया आरण मन विच लोहा, पंच अगंतित लाग रही, हुण भट्ठी का पूरा इत्थे जिक्र किया। कहते भट्ठी है काया, कहते बंदिया तू भी अपने शरीर नूं भट्ठी बना, अति जदों भट्ठी हुंदी है ना, उहदे विच एक अग हुंदी है। सत्संगी जनों, दूसरी गल उहदे विच कोयले पाए जाते हैं। वो हुण कोयले अग पता काहदे वास्ते है, उहदे उपर लोहा तपाया जाता है। लोहार जिहड़ा वो लोहा तपांदा है, तो लोहा तपाण तो बाद वो जो कुछ उन्हें बनाना है वो उहदा कुछ बना लैंदा है। मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते काया आरण मन विच लोहा, कहते अपने मन नूं उस आयरन दे विच कहते रखिया होया है। कहते काया आरण मन विच लोहा, कहते अग पता कदी है पंच अगंतित लाग रही, कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की कहते अग लगी हुई है। कहते कोयले पता किहड़े पाना तू इस दे उपर, कहते कोयले पाप पड़े तिस उपर, कहते जीवन दे विच कहते पाप ते पाप करी जांदा है, ते अग बलदी होवे। सत्संगी जनों, उपरों होर कोले पा दिते जान तो अग होर तेज हो जाती है, तो जदों अग होर तेज हो जाती है फिर पता की हुंदा, गुरु साहब कहते कोयले पाप पड़े तिस उपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई। सन्नी जिहड़ी करदी है वो लोहे नूं उल्टांदी है कि जिहड़ा पासा थोड़ा लाल ना होवे, सन्नी दे नाल उहदा पासा बदलते हैं। कहते जिहड़ी तेरे अंदर चिंता लगियां होईयां ना, कहते वो चिंतावां कदी तैनूं किसे पासे खिंच के लै जांदियां, कदी किसे पासे खिंच के लै जांदियां हन। कहते उहदे नाल होया पता की, कहते तू अपने मन लोहे दा कुछ बनाया तां ना, कहते होया पता की, कहते लोहा इन्ना जल गया, कहते मनूर बन गया। मनूर पता किहनूं कहते हैं, जदों लोहा बिल्कुल जल जाए ना, एक खंगर जा रह जाता, जिहड़ा फिर किसी भी काम नहीं आता। पर गुरु पातशाह ने वो जिहड़ा शब्द गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने अंकित किया ना, मेरे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ये सरवण करते हैं शब्द, पर नाल दी नाल अंदर झात मारते हैं कि आपां अपने अंदर झात मारी कि साडा मन की बनया होया। सत्संगी जनों, मैं बेनती करा, साडे मन भी बहुते ज़्यादा दे मनूर ही बन गए हैं। पर जदों उन्होंने सोचा कि मेरा मन तो मनूर बन गया, पर अगली पंक्ति गुरु साहब ने पता की किया, अखीरलियां पंक्तियां कहते पिया मनूर फिर कंचन होवे, जे गुर मिले तनेहा, कहते किते पूर्ण गुरु मिल जाए तो कहते मनूर नूं भी गुरु सोना बना दिंदा है। कहते वो करदा कि किवें सोना बनांदा, कहते एक नाम अमृत ओ देवे, कहते एक कहते अमृत रूपी नाम दिंदा है। कहते जदों इंसान नाम की कमाई करदा है, कहते फिर पता की हुंदा, एक नाम अमृत ओ देवे तो नानक तृष्टस दिया। कहते अंदर दी जिन्नियां भी तृष्णावां हन, कहते अंदर दा टिकाव बन जाता है जदों वो नाम की कमाई करता है। हुण अंदर तड़प पैदा हो गई कि एक किहदा शब्द है, एक किहदी बाणी है। कहते सुबह हुई बीबी अमरो जी नूं बुलाया, कहते जदों बीबी अमरो जी नूं बुलाया, सत्संगी जनों, क्या बेटी आ जिहड़े सुबह तू पदे पढ़दी सी, ये किहदे पदे सन, किहदी बाणी सी। बीबी अमरो जी कहन लगे जी एक गुरु नानक देव सच्चे पातशाह का उच्चारण किया, मारू राग दे अंदर दा शब्द सी, मेरे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह का उच्चारण किया शब्द है। अमरदास जी कहते बेटा फिर इस तरह कर, तू मैनू उन्हां दे कोल लै चल,
क्योंकि अंदर तड़प है कि पिया मनूर फिर कंचन होवे, कि मेरा मन तो मनूर बन गया, पर गुरु जी ये बाणी है ना, जिन्हें ये बाणी उच्चारण की है, वो मेरे मनूर हिरदे नूं फिर सोना जरूर बना देवेगा, कंचन जरूर बना देवेगा। अमरदास जी कहते बेटी अमरो मैनू अपने गुरु दे कोल, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे कोल लै चल। कहते बीबी अमरो जी ने हाथ जोड़े, कहते सच्चे पातशाह महापुरुषो पिता जी, कहते वो तो चढ़ाई कर गए हैं। कहते जो चढ़ाई की गल की ना कि उन्हों का हुण पंज भूतक शरीर गुरु नानक देव सच्चे पातशाह का संसार विच नहीं है। कहते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दियां अखां विच जल आ गया निराशता का कि गुरु पातशाह जा चुके हैं, हुण मैनूं किवें प्राप्ति होवेगी। कहते जदों बीबी अमरो जी ने देखा ना कि चेहरा बड़ा निराशता दे विच चला गया, बीबी अमरो जी ने फिर हाथ जोड़े, कहते पिता जी नहीं, वो जिहड़ी अपनी जोत है ना, वो कहते मेरे पिता गुरु जी दे विच टिका गए हैं, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दे विच टिका गए हैं। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह भगत अमरदास जी कहते बेटा अमरो फिर मैनू अपने पिता गुरु जी को लै चल। वो कहती पिता जी अजे थोड़े दिन ही हुए हैं, मैं पिंडों वापस खडूर तो हुणे वापस आई हाँ। पिता जी ने कहा सीगा बिना काम तो नहीं आना, ते अपने घरदियां दे हुक्म तो बिना नहीं आना। पर कहते पता की कीता, कहते अमरदास जी ने मानक चंद दी पत्नी जिन्हां दा इतिहास नाम लिखा सतसंग जी जिन्हों लखो जी, कहते उन्होंने बेनती की कि तुसी अपनी नौ राणी नूं को बेटी नूं को अमरो नूं कि मैनू गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दे कोल लै जावे। कहते उन्होंने कहा बेटा पिता समान हैं, तुसी इन्हां नूं लैके जाओ। कहते जदों सत बचन कह के लैके गए ना, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दा दीवान सजिया होया सी। कहते बीबी अमरो जी अंदर चले गए, पर कहते अमरदास जी नूं बाहर खड़ा कर गए। क्यों बाहर खड़ा कर गए? कि मैं अपने पिता गुरु की पहला आग्ञा ले आवां, कि मैं अपने पिता सौरा पिता जी नूं लैके आई हाँ, उन्होंने भराता जी नूं लैके आई हाँ। कहते जदों अंदर जाके बीबी अमरो जी ने संगत विच मत्था टेकिया ना गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह नूं, ते गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ने नेत्र खोले ते कहते बेटी अमरो जिन्हां नूं तू लैके आई हाँ, मैं बेनती करा सिख एक मन एक चित हो के गुरु दे दर ते आवे सतसंगी जनों, तां गुरु भी इंतजार कर रहा हुंदा है। दास ने पहला जदों जिस तरह ही हुक्मनामा होया, भाई गुरदास जी दियां ये पंक्तियां पढ़ियां सन कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। हुण गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह भी इंतजार कर रहे सन। कहते बेटी अमरो अंदर लैके आना, सत बचन कह के जदों अंदर लैके आए, हुण कुड़माचारी से मैं बेनती करा गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ने अपना आसन छड्डिया, उठ के खड़े हो गए। पर जिस तरह ही उठ के खड़े होए ना, गल वकड़ी च लैन लगे कि कुड़माचारी है, मेरे कुड़म मानक चंद के भरा हैं, वड्डे भरा हैं। कहते जिस तरह ही गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह गल वकड़ी च लैन लगे ना, तो अमरदास जी ने पता की किया सी, उन्होंने चरण पकड़ ले। चरण पकड़ के कहते कि सच्चे पातशाह मैं कुड़माचारी बना के नहीं आया आप जी के दर ते, मैं तो सिर्फ आप जी के दर का गोला बन के आया हाँ, मैं कुछ लैन वास्ते आया हाँ, मैं सिक्खी धारण करने वास्ते आया। चरण फड़ ले। कहते गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ने कोल बिठाया। पहले दिन कहते कोल बिठा के लंगर भी छकाया सतसंगी जनों, पर उस तो बाद कहते गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ने कोई ध्यान ही ना दिता। पर कहते जदों ध्यान ना दिता, हुण अमरदास जी के अंदर तड़प सी। कहते जदों तड़प सी, मैं बेनती करा तकरीबन जिहड़ा ये मिलाप होया इस सन 1540 दे विच सतसंगी जनों, 60-61 साल की उम्र हो गई है। 1540 या 41 दे विच ये मिलाप होया। उस तो बाद 12 साल उन्होंने सेवा की। जिहड़ी सेवा की उन्होंने तुसी भली भांत सुनते हो, जिन्हों कहते हैं बड़ा सोहना दाने पुरुषों ने कहा कि शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं कहते इन्नी कहते अवस्था दे विच डुब गए सन कि कोई अपने शरीर की भी सुध नहीं सी रहिंदी। कहते 12 सालों के विच 12 सरोपे दिते गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ने। कहते सरोपे के उपर सरोपा बनते जाते सन। कहते जिदन गुरियाई मिली ना, उदन 12 सरोपे गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ने अपने कर कमलों के नाल उन्हां दे सिर तो उतारे सन। सतसंगी जनों, मैं बेनती कर रहा कि इस अवस्था दे विच चले गए। जदों 12 साल पूरे हो गए सतसंगी जनों, फिर जुलाहे की खड्डी दे विच जदों गिरे, मींह पै रहा सी, जदों कहते रात नूं खड्डी दे विच गिरे, तो उस जुलाही ने कहा
कि ये कौन है। जुलाहे ने कहा कि काहदा खड़ाक होया। अपनी घरवाली जुलाही नूं कहंदा जरा बाहर जाके दे काहदा खड़ाक होया। उस जुलाही ने पता की कह दिता सी, कहंदे कौन होवेगा अद्धी रात नूं इन्ने मींह नेरी झक्खड़ दे विच ओ जिहड़ा अमरो नथावां तुरिया फिरदा ना, कुड़मां दियां बुच्चियां भरदा फिरदा, उही होवेगा, उही किते गिरिया होवेगा। ये बचन हुण गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे भगत अमरदास जी के कन्नां दे विच ही पए। कहंदे जदों कानां दे विच पए, कहंदे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने तो कोई जवाब ना दिता। पर कहंदे जदों दूजा दिन होए ना सत्संगी जनों, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह घट घट दी जाननहार, कहंदे उन्होंने पता की कीता सीगा, कहंदे सारा कुछ तैयारी करवा के गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं गुरियाई दे दित्ती। सत्संगी जनों जदों गुरियाई दित्ती ना, हुण मैं आप जी नूं बेनती करां, तकरीबन 22 साल गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने गुरियाई ते उपर सुशोभित रहे हैं। 22 साल गुरियाई की है। तो गुरियाई करते करते उन्होंने जो सिख जगत दे विच हुण मर्यादावां चल रही हैं ना, इन्हों तरतीब गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने दिती है। जिस ढंग के नाल आपां सत्संग करते हैं ना, ये तरतीब भी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने दिती सी, जिहड़ी लंगर की महानता दर्शाई। दास तकरीबन बेनती करया करदा, लंगर तो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने शुरू कर दिता सी, पर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह के वक्त तक होया पता की सीगा, ये गल हो गई सी सत्संगी जनों, ਜਿਹੜੀਆਂ संगतां उच्च जाति के संगत करन दे वास्ते संगत विच बैठण लई तां तैयार सन, पर उच्च जाति के पंगत दे विच नीवीं जाति वालियां दे नाल पंगत दे विच नाल बैठण नूं तैयार नहीं सन। ताही गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने कह दिता सी कि जिहने मेरे दर्शन करने हैं, पहला वो पंगत दे विच बैठ के लंगर छक के आवे तां मैं दर्शन देवांगा। और जदों राजा अकबर वर्गे भी दर्शनां दे वास्ते आए ना, उन्होंने भी कह दिता सी अकबर बादशाह पहला पंगत दे विच बैठ के लंगर छक के आ, तां फिर मैं तेनों दर्शन देवांगा। इसे करके मैं आप जी नूं बेनती करां, अज जिहड़ी सत्संग नूं प्रथा चलदी है, ਜਿਹੜੀਆਂ बीबियां विधवा हो जांदियां सन, सती हुंदियां सन, पतियां दे नाल जल जांदियां सन, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने पुकार पुकार ये बचन आखे सन, सतियां ए ना आखियन मणियां लग जलन। कहंदे जिहड़ियां सती सही नानका बिरह चोट मरन। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहंदे सतियां ओ नहीं है, कहंदे जिहड़े पतियां नाल सड़ के मर जांदियां हन, कहंदे सही मैने च सतियां ओ हन जिन्हां दे हिरदे च परमात्मा दे नाम दी चोट लगदी है ते परमात्मा दे मार्ग ते चल पैंदियां हन, सही मैने च सती ओ हन। दास बेनती करे सत्संगी जनों, जदों 22 साल ओ गुरगद्दी दे उपर सुशोभित रहे, तो हुण समा आ गया जाण दा, क्योंकि अज सत्संगी जनों ज्योति जोत दिवस है सिव श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दा। उस तो पहला इधर भाई जेठा जी सेवा कर रहे सन, सेवा दे विच तत्पर हो गए। 2 दिन पहला जिहड़े आप जी मैनू लगता रोज़ मंजी साहब जी तो कथा थोड़े विचों बहुत जने सरवण करते होणगे, जिहड़े नहीं करते तो मैं बेनती करा जरूर करया करो, क्योंकि एक तो दिहाड़ियां दा पता चलता है, एक नाल दी नाल उस दिन का इतिहास दी भी कथाकार कथावां करते हैं। गुरु जिन्हां दा कोई दिन हुंदा सत्संग नूं, उन्हां दी बाणी दा भी उपदेश उत्थों कथा दे राहीं दर्शाया जाता है। 31 तरीक नूं सत्संगी जनों की सीगा, साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह सोढी सुल्तान सच्चे पातशाह का गुरियाई दिवस सीगा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने हुण जदों देखिया कि हुण मेरा जिहड़ा शरीर है, हुण संत मनजीत सिंह जी दे कोलों सरवण कर रहे सी ना, एक दिन कहंदे सुबह जदों अमृत वेले भगती तो बाहर आए गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, ते कहंदे उधर पता की सी बीबी भानी जी झाड़ू दे रहे सन वेड़े दे विच, कहंदे जिस तरह दे रहे सन झाड़ू, हुण 3 कालदर्शी सन गुरु सन। कहंदे उन्होंने आके बीबी भानी नूं पुछया सी कि भानीए जे तेरा पति जेठा चढ़ाई कर जाए फिर तू की करेंगी। मैं बेनती करा बड़ी औखी गल है, एक प्यो अपनी बच्ची नूं ये गल कह रहा है, ते जेदा पति सत्संगी नूं बड़ा ही कालना काल रहा है, सेवा च तत्पर रहिंदा, उहनूं गुरु कह रहा है कि जे तेरा पति जेठा चढ़ाई कर जाए तू की कर जाएंगी। कहते उन्होंने पता की किया सी, हाथ जोड़े सिर झुका दिता, मुख तो लफ्ज तक कुछ ना कहे, पर जेदा भाव अर्थ सी कि जो परमात्मा करेगा
बस उन्हें मैं मिठा करके मन्नांगी। कहते जिस तरह ही सिर चुकाया गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहते भानीए कहते समा तो जेठे दा आया सी, पर तेरा भाना मनना देख के, तेरे अंदर दी प्रीत देख के, तेरे अंदर दा लगाव देख के, तेरे अंदर दी सेवा दा भावना देख के कहते हुण असी अपनी उम्र कहते जेठे नूं दिंदे हाँ। मेरे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने कहा सीगा उस वक्त 6 साल 11 महीने 18 दिन जेठा जी नूं उम्र दित्ती अते दूजे दिन कह दिता संगतां नूं कि हुण असी झोला बदलांगे। जो चोला बदलना सी सत्संगी जनों दास बेनती करे उस वक्त सारिया संगतां कट्ठियां हो गईयां। जदों संगतां कट्ठियां होईयां ना ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने उदों संगतां नूं एक उपदेश दिता सी। उपदेश पता किहड़ा दिता सी सत्संगी जनों, मत मैं पिछे कोई रोव सी सो मैं मूल ना पाया। जिन्हों अज सारा सिख जदों अंत समा आंदा ना तो सत्संगी नूं थोड़ा ख्याल करना, वो जिहड़ा अंत समय उपदेश दिता सी ना उसने पता की कीता सी बाबा सुंदर जी। हुण बाबा सुंदर जी पता कौन है? आप जी की ज्ञात वास्ते बेनती करा, मेरे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह के 2 बेटे हैं सत्संगी जनों, एक मोरी जी हैं ते एक मोहन जी हैं। मोरी जी के जिहड़े बेटे हैं वो हैं आनंद। आ जिहड़ा आनंद साहब आप पढ़ते हैं ना, ये आनंद साहब पता कदों उचारिया सीगा? जदों कहते मोरी जी के बेटे का जन्म होया ना, भाव गुरु अमरदास सच्चे पातशाह के पोते का जन्म होया, उदों गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने पूरे आनंद साहब जी का उच्चारण किया सी ते क्या सी ये बेटा जिहड़ा जन्मिया इसका नाम आनंद है। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने अपने पोते का नाम आनंद रखा सी ते उन्हां दे जिहड़ा बेटा सी ससी आनंद का बेटा सी सुंदर। जिहड़े गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने अंत समय संगतां नूं उपदेश दिता, अखीर च फिर पता की होया सीगा, सुंदर जी ने अपने रसना तो वो सारा उपदेश सत्संग जो अज बाणी दे विच अंकित है, जिन्हों आपां सद कहंदे हां, जिहड़े हर इंसान दे अंत समय पढ़ी जाती है, ये सद वो है जिहड़ी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने अपने अंत समय जिहड़ियां संगतां इकट्ठियां होईयां सन, परिवार इकट्ठा होया सी, उन्हां नूं उपदेश दिता सी सत्संगी जनों। कहते फिर उधर चीखा तैयार की गई, जिहड़ी चीखा तैयार की गई चंदन की लकड़ी दे नाल ब्यासा दरिया के कंढे ते। मैं आप जी नूं बेनती करा, मेरे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने सारा उपदेश देने तो बाद कहते चद्दर अपने उपर लई संगतां विच जिवें तुसीं बैठियां हो, कहते बिल्कुल बचन करके सारे बचनों की समाप्ति करके कहते चादर मंगाई, चादर उपर लई तां शरीर त्याग दिता। कहते जदों शरीर त्यागया सत्संगियों वो सीगा सत्संगियों 1 सितंबर भादरों की पूर्णमाशी का दिहाड़ा सी, 1 सितंबर सन 1574 सत्संगियों। तकरीबन उदों गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की उम्र 95 साल की हो गई सी। कहते जदों 5 भूतक शरीर का त्यागन किया, फिर कहते अर्थी तैयार की गई। अर्थी जिहड़ी तैयार की गई ना सत्संगियों, अर्थी नूं मोढा 4 जने दिंदे हन। मैं बेनती करा वो 4 जने पता किहड़े सन? एक तो अगले पासे गुरु रामदास सच्चे पातशाह जेठा जी सत्संगी जनों, ते दूसरे सन अगले पासे मोरी जी जिहड़े गुरु अमरदास सच्चे पातशाह के छोटे सपुत्र हैं। क्यों सन सत्संगियों? वड्डे सपुत्र भी सन, पर जदों गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने गुरु रामदास सच्चे पातशाह नूं संगतां दे विच गुरियाई दिती, मेरे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने आप तां जेठा जी दीयां 3 परिक्रमा कीतियां, 5 पैसे नारी रख के अगे मत्था टेक दिता सत्संगी नूं। बाबा बुढ़ा जी ने कहा कि जिहड़ी गुरियाई की रस्म है वह अदा कर दो। बाबा बुढ़ा जी ने भी सारी रस्म अदा कर दी। सब तो पहला मेरे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने अपने सपुत्रा नूं कहा सीगा कि जेठा जी नूं मत्था टेको। जदों कहा मोहन जी नूं, मोहन जी वड्डे सन तो वह इनकारी हो गए सन। वो कहते सन मैं नहीं इन्हों मत्था टेकांगा, ये हक तो मेरा बनता सी। श्री चंद जी लक्ष्मी दास जी ने भी ऐसे लफ्ज कहे सन, दासू दातू जी ने भी ऐसे लफ्ज कहे सन। कहते मोहन जी इनकारी हो गए सन, पर जिहड़े मोरी जी सन उन्होंने वास्ते लिखिया होया मोरी पुत सन्मुख हुआ रामदासे पैरी पाए जियो। कहते मोरी जी उठे, उन्होंने आके रामदास सच्चे पातशाह जेठा जी के चरणों से नमस्कार की। सत्संगी जनों मैं बेनती कर रहा सी, अर्थी जदों तैयार हो गई गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की अगले पासे गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अते सत्संगियों दूजे पासे बाबा मोरी जी जिहड़े गुरु अमरदास सच्चे पातशाह के छोटे सपुत्र हैं। ते पिछले पासे पता कौन सन? एक बाबा बुढ़ा जी
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਸੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 907 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਨੋਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾ ਤਾਪ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸੰਤਾਪ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ 22 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-21 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਵੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕੀਤੇ ਸੰਜਮ, ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸਾ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸੋ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ 10 15 20 ਮਿੰਟ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੜਿਆਂ ਪਛਾੜ ਨਾਨਕ ਬਾਣ ਸਚਾਵਾ ਸਨ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਰੜਾ ਚਿਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀ ਵਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੜਿਆਂ ਪਛਾੜ ਬਾਣ ਸਚਾਵਾ ਸਨ ਕੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਰੜਾ ਚਿਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀ ਵਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ